Hello students, good morning. Today one more new topic which we are going to discuss here, which is Abhigyan Shakuntalam, written by Mahakavi Kalidas. Kalidas is worldwide famous author, and this work is very well known and translated almost in all languages. So let us start Abhigyan Shakuntalam Act 4, which is prescribed in your syllabus BA first year new education policy, and recently this part is added to your syllabus. So here is Act 4 of Abhigyan Shakuntalam. This was the play. The play Abhigyan Shakuntalam, the recognition of Shakuntala, that is Shakuntalam एंड अभिज्ञान ज्ञान, शकुंतला के बारे में ज्ञान होना, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका ये मतलब है कि द रिकग्निशन ऑफ शकुंतला संस्कृत में हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम इज़ अ मास्टर पीस ऑफ संस्कृत लिटरेचर, जो संस्कृत लिटरेचर का अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट play है. By Act 4, the audience is aware the king Dushyant has secretly married with Shakuntala. इस एक्ट 4 में, इसका प्ले में मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेल प्रोटैगनिस्ट दुष्यंत कुमार और किंग दुष्यंत, और फीमेल प्रोटैगनिस्ट शकुंतला, दोनों चुपचाप से शादी कर लेते हैं. तो वो जो चुपचाप से शादी करना इज़ गंधर्व राइट, विच इज़ कॉल्ड गंधर्व राइट, है ना. तो गंधर्व विवाह यू मस्ट हैव लिसन अबाउट इट. सो दैट किंग दुष्यंत एंड शकुंतला गॉट मैरिड, राइट, सीक्रेटली, विच इज़ known as Gandharv marriage. Okay. Now, during his visit to Kanva's hermitage, he has left for his capital Hastinapur, promising to send for her. तो जब ये शादी करते हैं तो एक साधु है कन्वा, उनके पास जाते हैं और हस्तिनापुर जो इनकी कैपिटल है उसको छोड़ देते हैं और शकुंतला को इनके पास रख कर चले जाते हैं, साधु के पास. हाउएवर, अ क्रूशियल इवेंट, द कर्स ऑफ दुर्वासा हैज़ अकर्ड इन द इंटरवल बिटवीन Act 3 and Act 4, which dramatically alters the course of the narrative. तो एक्चुअली अभिज्ञान शाकुंतलम में Act 3 और Act 4 के बीच में यहाँ पे एक क्रूशियल इवेंट होता है, और वो क्या है? कर्स ऑफ दुर्वासा, उनका शाप यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है. तो देखिए कैसे आगे देखते हैं. द इंटरल्यूड प्रवेक्षा प्रोसीडिंग Act 4. अब क्या होता है इसमें, एक इंटरल्यूड है, वो वाइल नॉट एक्सप्लिसिटली पार्ट ऑफ Act 4, a short interlude often precedes it, typically involving minor characters, often Shakuntala's friends, who reveal key information. तो जो शकुंतला की सहेलियाँ हैं वो आके इनको कुछ खबर देती है. नंबर 1, Dushyant's departure.
The king has returned to his capital, leaving शकुंतला behind. तो यहाँ पे पता चलता है कि दुष्यंत ने शादी कर ली है पर अपनी पत्नी को छोड़कर आए हैं और कैपिटल वापस आ गए हैं. द गंधर्व मैरिज. द सीक्रेट मैरिज बिटवीन दुष्यंत एंड शकुंतला हैज़ टेकन प्लेस. लोगों को पता चलता है कि दुष्यंत कुमार ने शादी कर ली है, चुपचाप से शादी की है, गंधर्व विवाह कर लिया है और शकुंतला और उनके बीच में विवाह हो चुका है. तीसरी बात, द कर्स ऑफ दुर्वासा. ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. कर्स ऑफ दुर्वासा. दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल रेवलेशन. While Shakuntala was deeply engrossed, these are the important point. So then, engrossed in thoughts of Dushyant, the short-tempered sage Durvasa arrived at the hermitage. When Shakuntala was very much engrossed with the thoughts of Dushyant, then one sage comes, Durvasa, his name is Durvasa, comes in between, unaware of his presence. But then she is thinking for, Shakuntala is just thinking for, overwhelmed with the thought of Dushyant. So she could not acknowledge that Rishi Durvasa came to her. Unaware of his presence, Shakuntala failed to offer him proper hospitality. And Shakuntala could not welcome what she should have because he was ऋषि. तो साधु का सम्मान उनको उतना ध्यान नहीं दे पाती और engage दुर्वासा cursed her. तो दुर्वासा minded and he cursed Shakuntala, declaring that one she was thinking of, Dushyanta would forget her even if reminded. वो ऋषि दुर्वासा शकुंतला को शाप दे देते हैं कि दुष्यंत तुमको भूल जाएगा और उसको याद करने पर भी तुम उसको याद नहीं आओगी, ऐसा श्राप देके. दिस कर्स इज गिवन बाय ऋषि दुर्वासा. द एक्सेप्शन ऑफ द कर्स. व्हेन शकुंतला's friends Priyamvada and Anusuya plead with Durvasa, he relents slightly, stating that the curse would be lifted if Dushyant was shown a token of recognition, which is the signet ring Dushyanta gave to Shakuntala. जब शकुंतला की दो सहेलियाँ प्रियमवदा एंड अनुसुईया, दे प्लीडेड, दे रिक्वेस्टेड टू दुर्वासा कि ऐसा मत कहिए. तो वो थोड़ा सा उसमें ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि ठीक है. अब वो श्राप तो उनके मुंह से निकल ही चुका था. तो वो ही सेड ही ट्राई टू रिपेयर एंड ही सेड दुर्वासा वॉज शोन टोकन ऑफ रिकग्निशन. और वो अगर वो जो एक जब इनका गंधर्व विवाह हुआ था और इन्होंने अंगूठी पहनाई थी दुष्यंत ने जो, तो वो अगर शकुंतला दिखा दे जो शकुंतला को अंगूठी पहनाई थी, तो उससे उनको वह विवाह याद आ जाएगा. सीक्रेसी ऑफ कर्स. आगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अनुसुईया एंड प्रियमवदा डिसाइड टू कीप द कर्स अ सीक्रेट फ्रॉम शकुंतला टू स्पेयर हर डिस्ट्रेस. पर शकुंतला को ये जो कर्स है इसके बारे में नहीं पता होता. दे डिडंट टेल हु फ्रेंड्स Priyamvada and Anusuya didn't tell to Shakuntala that she was cursed by Rishi Durvasa. But this was up to
प्रियमवदा एंड अनुसुईया, वो अपने तक ही रखती है इस बात को। अब मेन इवेंट्स एंड थीम्स ऑफ एक्ट 4 क्या है? एक्ट 4 प्राइमरीली depicts Shakuntala's departure from the hermitage to join Dushyanta in Hastinapur, arranged by her foster fathers, Sage Kanva. It is highly emotional act brimming with pathos and natural beauty. अब शकुंतला की विदाई का समय आ गया एंड शी इज गोइंग टू हर हस्बैंड दुष्यंता who is living in Hastinapur. So Act 4 primarily depicts Shakuntala's departure from hermitage. अब वो यहाँ Act 4 is focused on departure of शकुंतला, जो इतने दिन कैनवा ऋषि उनकी उसकी उन्होंने देख रेख की और अब उसकी विदाई का समय आ गया है, अब वो अपने पति के घर में जा रही है। तो एक बहुत सुंदर, बहुत ही इमोशनल एक्ट है एक्ट 4, विच इज़ ब्रिमिंग अप टू पैथोस एंड नेचुरल ब्यूटी, और वो विच इज़ sympathy, empathy, feelings are shown in this act 4 in अभिज्ञान शकुंतला. नाउ नंबर 1, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या मेन इवेंट्स और थीम्स हैं, जिसमें है नंबर 1 सेटिंग ऑफ द सीन. The hermitage at dawn. The act begins with a serene morning scene in the hermitage. तो जो एक्ट है वो बड़ा ब्यूटीफुल मॉर्निंग इज़ इन द हर्मिटेज, जो साधु का उनका घर है वहाँ पे, उनके उनके हर्मिटेज में, आश्रम में, वहाँ पे बहुत ब्यूटी, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट. अ प्यूपिल of Kanva announces the rising sun, highlighting the natural beauty and tranquil rhythm of life in the ashram. और वो हाईलाइट करते हैं, बताते हैं कि सवेरा हो गया है आश्रम में. एंड दिस कंट्रास्ट शार्पली विद द इम्पेंडिंग इमोशनल टर्मोइल. एंड देन दैट्स अ वेरी इमोशनल एटमॉस्फेयर दैट डे. Number 2, Shakuntala's pregnancy and Kanva's knowledge. It is revealed that Shakuntala is now showing signs of pregnancy. शादी होके जाती है और वो कैनवा ऋषि के आश्रम में है, लेकिन कैनवा को पता चलता है कि शकुंतला इज प्रेग्नेंट. Sage Kanva, through his divine insight, has come to know of Shakuntala's secret marriage to Dushyant and her pregnancy. Instead of anger, he accepts the situation with wisdom and compassion, recognizing the purity of their love. तो जब सेज को पता चलता है कि शकुंतला प्रेग्नेंट है और इन्होंने चुपचाप से शादी कर लिया, because he is sage, so that's why through his divine insight he comes to know that Shakuntala is pregnant. But instead of anger, he accepts all these situation, and then बहुत प्यार से with the recognizing their love, he reacted and he decides that it is time for Shakuntala to go to her husband's home. अब वो प्रेग्नेंट है तो ऋषि thinks that this is the important time when Shakuntala should be with her husband. Then preparations for departure. अब उनके जाने की, शकुंतला के जाने की तैयारी हो रही है. Kanva arranges for Shakuntala to travel to Hastinapur, accompanied by his elder female disciple Gautami and two young ascetics.
And then young two aesthetics, Sarang Sarangarva and Sara Saradvata. These two as uh, two assistants, we can say, are supposed to go with Gautami. Gautami is elderly female disciple of Canva. The hermitage inhabitants, including her friends, gather to bid her farewell. अब शकुंतला की विदाई हो रही है, पूरे लोग वहाँ इकट्ठे हैं जो ऋषि दुर्वास कैनवा के आश्रम के लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं एंड दे प्रिपेयर गिफ्ट्स इंक्लूडिंग ऑस्पिशियस हर्ब्स फॉर द जर्नी एंड स्केड अ सेक्रेड प्रोटेक्टिव चार्म, और वो सब उनके लिए प्रेयर करते हैं और दिस वे शकुंतला को विदाई दी जाती है एंड देन शकुंतला इज being given farewell. Now Canva's emotional farewell and advice. This is the most celebrated part of the act. Canva's feelings are portrayed with immense tenderness and पैटर्नल लव. उन्होंने एक पिता की तरह उसको प्यार किया और बहुत ज़्यादा बहुत केयर से, बहुत प्यार से शी वॉज टेकन केयर बाय ऋषि कैनवा एंड ही एक्सप्रेसेस हिज profound sadness at separating from his beloved foster daughter, acknowledging the pain a householder father would feel, let alone an ascetic like him. और वो बहुत दुखी होकर, वेरी प्रोफाउंड सैडनेस एट सेपरेटिंग फ्रॉम हिज बिलविड फॉस्टर डॉटर, आज उनकी बहुत ही प्यारी लड़की विदाई हो रही है उसके, एक्नॉलेजिंग द पेन अ हाउस होल्डर फादर, जैसे एक पिता अपने, वो पापा की तरह, उन्होंने एक पिता की तरह उसकी देखभाल की, वुड फील, लेट अलोन एन एसेटिक लाइक हिम, और वो अब उसकी विदाई करने जा रहे हैं. कैनवास मूविंग soliloquy. He laments the pain of separation from his daughter, whom he has cherished and nurtured like a creeper. जिनको उन्होंने एक बेल की तरह हमेशा सपोर्ट, एक बेल को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने, और कैनवा ने एक फादर, एक पिता की तरह हमेशा शकुंतला को की वैसा ही सपोर्ट किया, वैसा ही देख रेख की. एंड ही पर्सोनिफाइज द ट्रीज, डियर एंड नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिटेज, शोइंग देयर रेसिप्रोकल अफेक्शन फॉर शकुंतला. अब उनके लिए झाड़, पेड़, हिरण और नेचुरल एलिमेंट्स जो भी आसपास उनके आश्रम के आसपास है, उसके थ्रू उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से शकुंतला की विदाई के बाद वो कैसे इन सब से अपना दुख साझा करते. दिस इज़ द पार्ट ऑफ एक्ट 4. फिर कैनवास विजडम एंड एडवाइस टू शकुंतला. ही ऑफर्स इनवैल्यूएबल एडवाइस फॉर हर न्यू लाइफ एज अ क्वीन. एक पिता जो अपनी बेटी को अपना होल लाइफ, उसका जो पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, एसेंस ऑफ एक्सपीरियंस, उसका निचोड़ अपनी बेटी को समझाते हैं, देता है. कैनवा भी अपनी बेटी शकुंतला को विजडम और एडवाइस देते हैं. सर्व हर एल्डर्स एंड सुपीरियर्स. क्या कहते हैं? हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना. फिर फिर कहते हैं बी अ लविंग एंड ओबीडियंट वाइफ टू हर हस्बैंड. हमेशा अपने पति का कहना मानना, बहुत प्यार से रहना उनके साथ. फिर
ट्रीट हर को वाइफ्स एज इक्वल। उनकी और भी वाइफ्स होंगी, उनके साथ जो भी उनकी दूसरी पत्नियां हैं उनके साथ भी प्यार से रहना। बी रिस्पेक्टफुल एंड काइंड टू हर सर्वेंट्स। हमेशा अपने सर्वेंट्स नौकरों के साथ बहुत रिस्पेक्टफुल और बहुत ही दया के साथ उनके साथ रहना। अवॉइड बीइंग कंसीडेड और एरोगेंट इन हर न्यू पोजीशन। अब तुम एक इतने बड़े राजकुमार की रानी बनने जा रही हो तो घमंड छूना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल घमंड नहीं दिखाना। एंड बी पेशेंट एंड टॉलरेंट स्पेशली इफ दुष्यंत अकेजनली शोज डिसप्लेजर। कभी भी अगर पति दुष्यंत थोड़ा सा भी गुस्सा करते हैं या अ, कभी किसी चीज़ से नाखुश होते हैं तो हमेशा पेशेंस, धैर्य रखना, संयम रखना। ऐसा एक पिता कैनवा अपनी डॉटर शकुंतला को विदाई के पहले ये सब समझा रहे हैं। आखिरी में कहते हैं ही एम्फेसाइजेस दैट अ वुमन हु लिव्स दस बिकम्स अ ट्रू मिस्ट्रेस ऑफ हर हाउस। और वो कहते हैं कि एक औरत ही घर का, पूरे घर की पर्सन होती है। तो ये सलाहें दी जाती है। फिर शकुंतला's fond farewell to the hermitage। शकुंतला overwhelmed with the emotions bid farewell to the trees, creepers and deer she has nurtured। अब she feels a deep bond with nature and laments leaving it behind। अब जब शकुंतला जाती है तो उसको वो बहुत इमोशनल हो रही है उन ट्रीज़ के साथ, जिन ट्रीज़ के साथ, जिन क्रीपर्स के साथ बड़े बड़े वृक्ष, बेलें और डियर और हिरण, जिसके और पूरे नेचर जिसको उसने पाला है, उनके साथ वो पली बड़ी है, उन सब को वो याद करती है और बहुत उसकी डीप बॉन्डिंग है उनके साथ और वो बहुत रोती है। शी पॉजेस टू एम्ब्रेस अ जैस्मिन क्रीपर। जब वो एक के बाद एक झाड़ से जाकर ट्रीज से गले मिल रही है, बेलों से मिलती है, तो वो जैस्मिन क्रीपर के पास रुक जाती है और वनाज योत्सना एंड अ फॉन शी हैज़ रेज्ड। और एक हिरण का बच्चा जिसको उसने पाला है, सिम्बलाइजिंग हर डीप कनेक्शन टू द हेर्मिटेज इकोसिस्टम। ये अपने आप में ही एक बड़ा नेचर के साथ जुड़ाव जो कालिदास ने लिखा है। मतलब शकुंतला के थ्रू उन्होंने बताया कि एक कितना गहरा गहरा रिश्ता है हमारा नेचर के साथ, प्रकृति के साथ। द एटमॉस्फेयर इज फिल्ड विद अ सेंस ऑफ जेंटल मेलैंकली एंड नॉस्टैल्जिया। और पूरा एटमॉस्फेयर शकुंतला की विदाई में है और एक बहुत ही दुखी और बहुत ही पुरानी सारी बातें याद आ रही हैं। फिर द फॉन्स ऑब्स्टिकल। एज शकुंतला लीव्स अ यंग फॉन whom she had nursed followed her, tugging at her garment. This poignant movement underscores her bond with nature and further highlights the difficulty of her departure। तो वो जैसे ही विदा होती है तो यंग फॉन वो उसके कपड़े, शकुंतला के कपड़े पकड़ लेता है अपने मुंह से और उसको जाने नहीं देता। ये अपने आप में एक नेचर के साथ जुड़ाव, बहुत ही गहरा जुड़ाव व्यक्त करता है। कैनवा टेंडरली टेल्स द फॉन टू लेट हर गो एज शी इज़ लीविंग हर होम फॉर अनदर। तो कैनवा कहते हैं कि फॉन से कि शकुंतला को जाने दो। वो छोटे यंग डियर से कहते हैं कि शकुंतला को जाने दो
क्योंकि अब उसको उसके घर जाना है, वो अपने घर के लिए विदा ले रही है। फिर द जर्नी बिगिंस। द एक्ट ऑफ कंक्लूड्स विद शकुंतला, गौतमी, Sangarva and Sardatva embarking on their journey to Hastinapur, leaving the tranquil hermitage behind for unknown world of the royal palace. अब वो एक इतना सुंदर नेचुरल आश्रम को छोड़कर, जो नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर प्रकृति के बीच में है, और अब ये सारे लोग छोड़कर हस्तिनापुर एक रॉयल फैमिली में जा रहे हैं, जो उनको ठीक से पता भी नहीं है कि वहाँ क्या है, कैसा सिस्टम है। की थीम्स एंड लिटरेरी सिग्निफिकेंस ऑफ एक्ट 4। की थीम्स क्या है? पैटर्नल लव एंड सेपरेशन। द एक्ट इज प्रोफाउंड exploration of a father's love for his daughter and the pain of letting her go. अब इसकी थीम है पैटर्नल लव एंड सेपरेशन। एक बच्ची, एक लड़की हमेशा अपने पापा की, माँ की भी प्यारी होती है, पापा की बहुत प्यारी होती है, और वो उतना मम्मी पापा उसकी केयर करते हैं, भाई बहनों के बीच में रहती है, उस घर में रहती है, और उसको जाना पड़ता है। तो एक पैटर्नल लव एंड सेपरेशन, दिस द मेजर पार्ट ऑफ दिस एक्ट। द एक्ट इज प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ फादर्स लव फॉर हिज डॉटर। और वो सबसे कठिन समय होता है जब फादर अपनी बच्ची की विदाई करते हैं, जिसको उन्होंने फूलों जैसा पाला है, एंड द पेन ऑफ लेटिंग हर गो। और अब वो खुद ही विदाई करते हैं, और उसको वो पेन, उनको बहुत दुख होता है, एंड वो जाती है। कैनवास कैरेक्टर एम्बडीज विजडम। और यहाँ कैनवा अपने गुस्सा नहीं करते जब उनको पता चलता है शकुंतला प्रेग्नेंट है, या वो बहुत बहुत प्यार से उस चीज़ को एज अ फादर की कितनी भी गलती कर ले, फादर के लिए बेटी बेटी होती है, बच्चे बच्चे होते हैं। सेल्फलेसनेस एंड डीप अफेक्शन। फिर भी हर फादर, हर मदर अपना अफेक्शन, डीप अफेक्शन दिखाते हैं। फिर बॉन्ड विद नेचर। बहुत ज़्यादा नेचर के साथ, प्रकृति के साथ जो शकुंतला का जुड़ाव है, उसके थ्रू हमें पता चलता है कि पहले लोग नेचर को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देते थे जितना ह्यूमन बीइंग को दिया जाता था। शकुंतला's close relationship with the hermitage plants animal is a central theme, कि एक नेचर के साथ कितना जुड़ाव है, हाईलाइटिंग द हार्मनी एंड प्योरिटी ऑफ अपब्रिंगिंग, कि उनको बचपन से कैसे पाला गया है, जो इतना ज़्यादा वो नेचर के करीब है। फिर दिस कनेक्शन कंट्रास्ट विद द आर्टिफिशियलिटी ऑफ द कोर्ट लाइफ। और ये जो हम आर्टिफिशियल लाइफ आज जी रहे हैं, उससे बहुत अलग है। आज हम अपने ह्यूमन बीइंग से ही इतने कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, नेचर तो बहुत दूर की बात है। फिर इसमें एक थीम है धर्मा, ड्यूटी वर्सेस पर्सनल इमोशन। कैटवा डिस्पाइट हिज पर्सनल सॉरो patronizes शकुंतला's धर्मा एज अ वाइफ एंड फ्यूचर क्वीन, सेंडिंग हर टू हर हस्बैंड्स होम। उसके पति के घर भेजने के पहले ऋषि कैनवा उसको समझाते हैं कि कितनी भी अपनी पर्सनल लाइफ हो, पर हमेशा धर्म को, पत्नी का धर्म निभाना पहले। अब तुम उस घर की रानी हो, तो तुमको अपने सुख दुख से पहले दूसरों के सुख दुख के बारे में सोचना है। Foreshadowing and dramatic irony. The audience is aware of Durvasa's curse. ऑडियंस को पता है कि दुर्वासा ने शकुंतला को यह कर्स दिया है, विच क्रिएट्स ड्रामेटिक आयरनी। जो एक बड़ी आयरनी है कि शकुंतला को इतनी सारी सलाहें, इतना सारा सब कुछ दिया जा रहा है, उनके साथ इतने सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन दुष्यंत को याद ही नहीं रहेगा कि शकुंतला कौन है। तो द होपफुल जर्नी टू हस्तिनापुर इज टिंज्ड विद द ऑडियंस नॉलेज ऑफ द इम्पेंडिंग रिजेक्शन।
उनको पता है जाने के बाद क्या होने वाला है, किसको, ऑडियंस को। Ideal womanhood. Canva's advice to Shakuntala outlines the traditional virtues of an ideal Indian wife कि एक भारतीय आदर्श महिला कैसे होती है। यह सीख जो कैनवा ने अपने ऋषि कैनवा ने अपनी डिसाइपल अपनी बेटी शकुंतला को दी है कि डिवोशन, पेशेंस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड काइंडनेस टू ऑल, कि हमेशा समर्पित रहना अपने ससुराल के प्रति, बहुत धैर्य रखना, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, ये सारी सलाहें दी जाती हैं। फिर पोएटिक ब्यूटी, कालिदास पोएटिक जीनियस शाइन्स ब्राइटेस्ट इन एक्ट। कालिदास महाकवि, उनका जो लिखने का अंदाज ना कवि का, विद एवोकेटिव डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर, और जिस तरह से उन्होंने लिखा है उसको कि आपको पढ़ने एक शब्द आपके मानसिक पटल में अंकित होता है। तो टेंडर इमोशंस एंड वेरी ब्यूटीफुली टेंडरली ईच एंड एवरी इमोशन, इट टचेस ईच एंड एवरी इमोशंस ऑफ द माइंड एंड प्रोफाइंड philosophical insights and deep detailed philosophical insights are given here. The imagery of the hermitage, the departing daughter and the loving father is exquisitely rendered. और एक लविंग डॉटर है, बहुत लविंग है, लेकिन उसको बड़ी हार्श, कड़ी सलाहें, सीख आर गिवन बाय फादर। फादर मीन्स ऋषि कैनवा, who took care of daughter शकुंतला। फिर transition and change. Act 4 marks a crucial transition for Shakuntala from the innocent, protected life of hermitage to the complex and challenging world of royal place. वो एक बड़ा कंट्रास्ट है, बहुत बड़ा चेंज, क्योंकि अभी शकुंतला फूल की तरह बहुत प्यार से नाजुक माहौल में पली बड़ी है, छोटे से एक आश्रम में, लेकिन अब वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स लाइफ जीने जा रही है, जहाँ एक सिस्टम है, जहाँ रॉयल पैलेस है, जहाँ रहना वो हर चीज़ बहुत अलग है। इट सेट्स द स्टेज फॉर द कन्फ्लिक्ट एंड इवेंचुअल रिजोल्यूशन ऑफ द प्ले, जो अपने आप में बताता है कि लाइफ में कितने सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, कितना कन्फ्लिक्ट है अपने साथ, समाज के साथ, सिचुएशंस के साथ। तो ये सारा कुछ यहाँ पे हम देखेंगे। Act 4 is a testament of Kalidas' mastery of human emotion and his ability to weave a narrative that is both deeply personal and universally resonant. Act 4 कालिदास का सबसे बड़ा उनकी मास्टरी है, उसमें जो दिखाया गया है ह्यूमन इमोशंस की, हमारी भावनाएं, उनको उन्होंने शब्दों में किस तरह से पिरोया है, और हमारी दोनों व्यक्तिगत और हमारे लोगों के साथ यूनिवर्सली रेजोनेंट। और जब हम बाहर के लोगों से अपने अलावा लोगों से डील करते हैं तो हमारे किस किस तरह की भावनाएं, हमको कैसे कैसी चीज़ें फेस करनी होती है। इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट बिलवेड एंड स्टडीड पार्ट्स ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम। इसीलिए आपको 4th पार्ट एक्ट 4 दिया गया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, एक्ट किया जाने वाला पार्ट है जो अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। तो दैट इज़ ऑल। आज हमने देखा कि यहाँ पे हमने देखा कि शकुंतला जो है उनका अभिज्ञान शाकुंतलम एक्ट 4 के बारे में हमने देखा, जो शकुंतला और किंग दुष्यंत जब वो शुरू में कैसे गंधर्व विवाह कर लेते हैं, चुपचाप से विवाह करते हैं,
और फिर राजा दुष्यंत शकुंतला को कुछ समय के लिए कैनवा ऋषि के आश्रम में छोड़ जाते हैं। लेकिन एक दिन शकुंतला अपने ही विचारों में दुष्यंत के विचारों में मस्त है और वो देख नहीं पाती कि उनके द्वार में दुर्वासा ऋषि आए हैं, और वो दुर्वासा ऋषि को बहुत हर्ट होता है और वो उसको शाप दे देते हैं। पर ये बात शकुंतला को नहीं पता। उन शकुंतला की फ्रेंड्स जो है अनसुईया और उनकी फ्रेंड्स वो सुन लेती है, और फाइनली पर फिर वो ये बात अपनी फ्रेंड शकुंतला को नहीं बताती। फिर एक दिन उनकी विदाई होती है, और विदाई के समय कैनवा ऋषि अपने बेटी की तरह उन्होंने उसको पाला है, कितने प्यार से विदा करते हैं और किस एक पिता की खूब सारी सीख देते हैं। और फिर उनके साथ गौतमी जो सबसे पुरानी सबसे सीनियर डिसाइपल है इस आश्रम की, वो साथ में जाती है उनके 2 सहभागियों के साथ, और शकुंतला को अपने साथ हस्तिनापुर राजा दुष्यंत के पास ले जाती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऑडियंस को पता है कि दुष्यंत शकुंतला इज कर्स्ड एंड दैट दुष्यंत विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर शकुंतला हु इज शी, बट देन each and everything, and Shakuntala is unaware, and then they all are moving to Hastinapur. So how beautifully like Shakuntala and nature and everything is described here. We have seen that what's the beauty of emotions and all human emotions, which are very beautifully depicted by Mahakavi Kalidas. So that is all for today. Thank you so much.